Hello everyone. So you can see on the board lecture 1. Why it is written as lecture 1? Because now onwards I'm going to start English language for MHSET 2026. So the aspirants who are going to appear in MHSET 2026, these videos are going to be very useful for them. So please keep watching and stay with me if you really want to get an edge over English language to compete in MHSET 2026. So you can see here on screen lecture 1, and the first topic that I am going to deal is recognizing parts of speech. So this is very important topic in English language. If you see what kind of questions are asked regarding this particular chapter. See, sentences are given and some words are written in bold, and you have to recognize whether the bold word is noun, pronoun, adjective, verb, adverb or whatever, right? So how you should recognize? Regarding this, I am going to tell you some important tricks. Easily you can recognize with the help of the tricks the kind of parts of speech are given in the sentences. So without wasting time, let's begin our first chapter, that is recognizing parts of speech. So instructions, you must read it carefully. The following are the sentences with a bold word. It means the word that is given is written in bold and you have to recognize the parts of speech of it. Right, what part of speech it is in fact. So let me show you the question. She spoke clearly during the presentation. Up here the word is clearly, that is written in bold. Up she spoke. She is subject of the sentence, spoke is verb, and how she spoke. If the verb is being modified, right, so the verb is modified only by one part of speech, and that is adverb. Hence clearly is adverb. Now options are given, so we have to see if adverb is given. Yes, adverb is given. What actually an adverb is? Let me tell you. Adverb modifies three parts of a speech. First verb, second adjective, and third another adverb, right? So generally what we have heard of, an adverb modifies a verb, but it is not the complete definition of an adverb. An adverb modifies three parts of a speech. First verb, second adjective, third is another adverb, right? How it modifies these three parts of a speech? First is he ran fast. How he ran? Fast. So hence it is an adverb. Second, he is very smart. How is he? Smart. Smart is adjective, but how is smart? Very smart. Again it is adverb, it is modifying its adjective. Third is he ran very fast. Fast was adverb. So it means how fast he ran? Very fast. Hence very is adverb and it is modifying another adverb, that is fast. So don't say that adverb modifies only verb. An adverb modifies three parts of speech: verb, adjective and another adverb. And you can see all these three parts of speech are being modified by an adverb, right? Here she spoke. How she spoke? So it is called adverb of manner. That tells you how. If an adverb tells us how something happens, it is adverb of manner. If it tells us when something happens, it is adverb of time. And if it tells us where something happens, it is adverb of place. How much? Degree. How frequently? Frequency. So there are various types of adverbs. Here she spoke clearly. How she spoke? Clearly. So it is adverb of manner. Got it? So it is adverb and the option is B, that is answer. Let's move to this next question. The decision surprised everyone. What surprised everyone? The decision. What is something? If what gives us the expression of something, that something can be living or non-living. If it is something, so it is noun. If it is something, it is noun. A decision is noun. And what kind of noun it is? Abstract noun. Hence noun is
the correct answer. But what kind of noun? Decision we cannot see, but it is noun. What is surprising? So when there is a subject that is doing some action, so this subject may be a noun or pronoun, so it is simply a noun that is surprising everyone in the room, right? Hence noun means C is the correct answer. He will conduct. See, when you find will and shall, you know it is used in future tense. These are the auxiliary verbs, will and shall. These are auxiliary verbs, and auxiliary verbs is always followed by principal verb, mean main verb. So conduct is a main verb. So what is it actually? So it is a verb. Is that clear? It is a verb, because auxiliary verb has to be followed by a main verb, action verb. So conduct is main verb, so it's not written actually it's a main verb or auxiliary verb, but it is a verb. I hope you got the point. So after auxiliary verb it is main verb. Fourth question is, the road was narrow. How was the road? What was narrow? Road. Road is something, so it is noun. But how was the noun? Narrow. Noun is being modified by adjective. It means noun or pronoun are modified only by adjectives, and here the adjective is given, right? So how was the road? Narrow, right? Wide road, narrow road. So it is describing the road, right? The word that describes a noun or pronoun is called adjective. So a narrow word is adjective. Fifth question is, she has been working here since 2021. If you have read tenses, you know in perfect tenses you find since and for. It is since 2021. It means 2021 से. तो अगर टाइम को आपको ऐड करना है तो व्हाट एक्चुअली वी नीड टू यूज, एंड वी यूज preposition. Since 2021, for is used for period of time, like for 5 years, for 6 years, for 2 decades, for 2 weeks. Since gives us the expression of point of time, hence it is preposition. Since and for are prepositions when they say exactly the action happens from a particular time. So it is preposition. Although the task was challenging, then there is a comma. The team completed it on time, right? So although, the function of although is to connect two statements. And what kind of two statements? Contradictory statements. So for contradiction we need something to add on, and that is conjunction. Though, although, but, ये सब क्या है? कनेक्टर्स हैं, कंजंक्शंस हैं. दे कनेक्ट टू क्लॉजेस. तो यहाँ पे although जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कनेक्ट करता है, तो although इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो इट इज कंजंक्शन, राइट? देखो ये सब बहुत ही बेसिक चीज हैं, हम जो स्कूल में स्टडी कर चुके हैं. अगर आप देखो तो क्लास 4th 5th में भी पढ़ाया जाता है, और 6 ऑनवर्ड्स तो आपको बहुत डीप ग्रामर कराया गया होगा. बट कॉम्पिटेटिव लेवल पे हम इतना ध्यान नहीं देते कि एक पर्टिकुलर वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स भूल चुके होते हैं. तो जस्ट वही मैं रिवाइज यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा. एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे देंगे, अंडरलाइन कर देंगे या बोल्ड में लिख देंगे, एंड यू हैव टू टेल एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज. तो याद रखिएगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है सबसे पहले. अब अगर पूरे सी सेंटेंस देखो, दे रेयरली मिस देयर डेडलाइंस. व्हाट दे डू? दे मिस. हाउ दे मिस? रेयरली, राइट? इसका मतलब क्या है? मिसिंग कैसे कर रहे हैं वो लोग? रेयरली. तो रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से ही मिस करते हैं. इसका मतलब ऑलमोस्ट वो लोग अपने डेडलाइंस को कंप्लीट करते हैं. तो रेयरली क्या फंक्शन कर रहा है यहां पे? मिस की फ्रीक्वेंसी बता रहा है. हाउ फ्रीक्वेंटली दे मिस द डेडलाइन? रेयरली, राइट? तो रेयरली यहां पे क्या है? एक एडवर्ब है. क्लियर? जैसे वी रेयरली मीट ऑन संडेज, तो हम कब कब मिलते हैं संडेज को? रेयरली ही मिलते हैं. इसका मतलब अक्सर हम नहीं मिलते हैं, राइट? तो रेयरली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर? नेक्स्ट आइए. द कमिटी हैज रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन. व्हाट हैज रीच्ड? अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट का काम. अब सब्जेक्ट का काम कौन करता है? एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, सब्जेक्ट का काम दो ही करते हैं. कौन? या तो नाउन या तो प्रोनाउन.
कि या तो नाउन है या प्रोनाउन है। अब कैसा नाउन है? कमिटी इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इट मींस इट इज अ कलेक्टिव नाउन। व्हेनेवर यू से कमिटी, तो नाउन तो है ही है, कैसा नाउन है ना, तो कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। जैसे ज्यूरी, राइट, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीम इज कलेक्टिव नाउन, सो कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन, हेंस आंसर हमारा क्या हो गया यहां पे? ए, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर आई हैव अटेंडेड। दिस, अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, बी इट दिस और दैट, these और those, राइट। एक्चुअली इनसे हम इंडिकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इनसे कोई चीज दिखाते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है तो मैं कहूंगा दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, तो मेरे पास है तो दिस, दूर कोई चीज दिखाना है तो आप कहोगे दैट इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। अब नजदीक में एक से ज्यादा चीजें हैं, दीज आर द पेन्स एंड दोज आर योर बुक्स। तो दिस, these, that, those, this and these for nearer things and that and those are for farther things। अब क्वेश्चन ये है कि this यहां पे क्या है, तो याद रखिएगा अगर this, that, these, those अकेले हैं, इनके बाद कोई और नाउन नहीं है, तब तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अब यहीं अगर मैं लिख दूं दिस बुक, these boys, that man, those books, अब अगर नाउन के पहले ये वर्ड्स आएंगे तो नाउ दे आर नॉट प्रोनाउन, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहां पे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? प्रोनाउन। लेकिन अगर मैंने कह दिया दिस पेन, राइट, तो दिस इज अ पेन, दिस से मैं कोई चीज दिखा रहा हूं, दिस, क्या दिस? ये, तो दिस इज यूज टू इंडिकेट समथिंग, डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, राइट। दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये अकेले हैं, बिना नाउन के हैं, तब तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट इफ दे आर यूज बिफोर नाउन तो दे आर नॉट प्रोनाउन, दे आर एडजेक्टिव्स, बिकॉज नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता, नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, इसलिए यहां पे ये प्रोनाउन है। दिस इज प्रोनाउन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please put the files there. Where you are asked to put the files there. जैसे मैंने कहा come here. Where? तो where means adverb of place. He has gone somewhere. Where he has gone? Somewhere. I searched him everywhere. Where? Everywhere. तो जो कंजंक्शन, मतलब जो वर्ड where का एक्सप्रेशन देता है, where something happens, right? Where you have to put. where he is going to meet you। तो जब भी आप where का क्वेश्चन अपने माइंड में लाते हैं, इट मीन्स यू हैव टू यूज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? तो यहां पे एडवर्ब है ये, here, there, everywhere, somewhere, nowhere, ये सब। इवन सम prepositions आई एम टेलिंग यू, लाइक मैंने कहा कि मान लो कई ऐसे prepositions हैं जो एक्चुअली एडवर्ब का काम करते हैं, जैसे प्लीज कम इन। अब इन preposition भी है, where you have to come in। अब अगर इन के बाद कोई वर्ड है तब तो ये preposition है, in the room। अब यहां पे in preposition है, please come in। अब यहां in क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? तो देयर आर सर्टेन prepositions, अगर वो एकदम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हैं and they are denoting some place, it means it is not preposition, it is adverb of place। तो यहां पे ये एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, they decided what they did some action, what they did, they decided। and decide का past form है decided, और past form सिर्फ एक ही चीज का होता है and that is verb का, और किसी का नहीं। verb has three forms, present form, past form and past participle form। इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। वर्ब तो है ही, अगर वर्ब के अलावा भी पूछा जाता है कैसा वर्ब है तो इट्स एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। He spoke with great confidence. He spoke. How he spoke? With great confidence. Right? What was great? There was something that was great. But great is adjective. Great describes something. What actually the word great describing? Confidence को describe कर रहा है। इसका मतलब with something. He spoke with something. And what was that thing? As I told you earlier, if it is something, it is noun. तो confidence कैसा noun होगा? Abstract noun that we cannot see. It means this is noun. Clear? The fast train
arrived earlier than expected. What arrived? Train. How was the train? Fast. तो अगर fast train है, train is noun, train is something, it's noun, and noun is modified only by adjective, right? तो simple noun के पहले आया है, adjective है. जरूरी नहीं कि noun के पहले ही adjective आता हो, right? मैं भी तो कह सकता हूं the train was fast. How was the train? The man was handsome. या handsome man. तो adjective आप noun के पहले भी लगाते हो या एडजेक्टिव नाउन या वर्ब के बाद भी लगाते हो, राइट? जैसे द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, आप कह सकते हो द ब्यूटीफुल गर्ल. तो गर्ल के पहले भी ब्यूटीफुल आ सकता है एट्रीब्यूटिव केस में, या बाद में भी आप लगा सकते हो प्रेडिकेटिव केस में. शी वॉक्ड पास्ट द ओल्ड बिल्डिंग्स विदाउट स्टॉपिंग. हाउ शी पास्ड द बिल्डिंग, राइट? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए. तो विद या विदाउट ये किसका काम करते हैं? प्रपोजिशन का. विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, तो इट इज यूज्ड एज प्रपोजिशन, राइट? इफ यू डूइंग विद समथिंग, इफ यू डूइंग विदाउट समथिंग, तो इट इज यूज्ड एज प्रपोजिशन. विद और विदाउट, जैसे वी कैन नॉट सी विदाउट आवर आईज, तो विदाउट दैट इज मीडियम, तो यहां पे ये क्या है? प्रपोजिशन है. द रिजल्ट्स वर फार बेटर देन एंटिसिपेटेड. हाउ वर द रिजल्ट्स? बेटर, बेटर देन. अब गुड, बेटर, बेस्ट वी नो क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं किसको? रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है बेटर. बट कितना बेटर? जब भी एडजेक्टिव मॉडिफाई होगी, तभी मैंने बताया था एडजेक्टिव इज ऑल्सो मॉडिफाइड बाय एडवर्ब. सो बेटर, हाउ बेटर? फार बेटर. इसका मतलब फार यहां क्या है? एडवर्ब. बिकॉज एडजेक्टिव की डिग्री जो बता रहा है वो कौन है? एडवर्ब. ओनली एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव. जैसे देखो, हम बोलते हैं ना इट इज वेरी हॉट. हॉट तो है एडजेक्टिव है. द डे इज वेरी हॉट, बट हाउ हॉट? वेरी हॉट. द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? डिफिकल्ट तो है, कितना डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट. तो एडवर्ब मॉडिफाइज 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहां पे एडजेक्टिव इज बीइंग मॉडिफाइड बाय एडवर्ब. बेटर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब. फार बेटर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी अ कॉल. अब देखो, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दें, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहां पे क्या है? वर्ब, पास्ट फॉर्म में. बट ही गेव मी समथिंग. व्हाट ही गेव मी? अ कॉल, राइट? ही गेव मी अ कॉल. नाउ ही गेव मी समथिंग एंड दैट इज नाउन. तो यहां पे कॉल नाउन है. अगर कॉल एक्शन वर्ब के तरह यूज होती तो यहां यूज होती ही कॉल्ड मी. जैसे देखो, एक वॉक, ये भी वर्ब की तरह यूज होती है और नाउन की तरह. जैसे ही हैज गॉन ऑन वॉक, तो कहां पे गया है? वॉक पे गया है, राइट? बट ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क. अब यहां वॉक क्या? वर्ब, राइट? आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, तो फॉर समथिंग दैट वॉक इज अ नाउन, राइट? आई वॉक इन द पार्क, आई वॉक ऑन द रोड. तो यहां पे वॉक क्या है? वर्ब, राइट? तो यहां पे वॉक या कॉल ये वर्ब भी वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं. तो यहां पे कॉल क्या है? आ. वैसे भी जान लो, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. आर्टिकल नाउन के पहले ही आते हैं और कहीं नहीं. इफ नाउन इज नॉट देयर, आर्टिकल कैन नॉट बी देयर. सो यहां पे कॉल क्या है? नाउन. यहां पे जो मैंने आपको बताया था ही कॉल्ड मी, यहां पे कॉल क्या है? वर्ब. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू डिसाइड नाउ विल अफेक्ट एवरीवन. सो व्हाट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन? What you decide, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो. अब यहां what क्या है? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, राइट? तो what you decide will affect everyone. What is going to affect everyone? Something. And what is that thing? What. तो इसका मतलब नाउन तो है नहीं. नाउन नहीं है तो क्या है फिर? सब्जेक्ट, प्रोनाउन. इसका मतलब what is going to affect, there is something, and what is that thing? या तो नाउन या प्रोनाउन. अब नाउन नहीं तो नाउन की जगह पे क्या हुआ है? यूज प्रोनाउन. इसका मतलब समथिंग दैट यू हैव डिसाइडेड या समथिंग दैट यू डिसाइड. तो यू डिसाइड समथिंग. व्हाट इज दैट थिंग? वट एवर यू डिसाइड. सो व्हाट इज बीइंग यूज्ड एज प्रोनाउन. क्लियर? अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है. द वेदर टर्न कोल्ड सडनली. अब ये कोल्ड क्या टर्न हुआ? वेदर. वेदर क्या है? नाउन. अब नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. Adjective is given there. The athletes trained hard. The athletes, what they did, they trained. How they trained? Hard. What I said,
ट्रेनिंग कैसे हुई है? ये ट्रेंड इज वर्ब, वर्ब इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, इसका मतलब इट इज एन एडवर्ब. हाउ दे ट्रेन? हार्ड. जैसे हाउ ही वर्क हार्ड, ही रैन फास्ट, हाउ ही रैन फास्ट, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर. 20th क्वेश्चन पे आ जाइए. शी बॉट दैट बुक. जस्ट आई सेड, अगर दिस दैट दीज दोज नाउन से पहले हैं तो ये क्या होंगे, और अगर बिना नाउन के होंगे तो क्या होंगे, राइट? तो यहां पे नाउन है बुक, दैट उसके पहले आ रहा था, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव. अगर सिर्फ दैट दिस दोज अकेले हैं तो ये प्रोनाउन होंगे, नाउन के पहले होंगे तो एडजेक्टिव्स होंगे. शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली. हाउ शी स्पीक्स? पोलाइटली. तो पोलाइटली तो हो गया भाई एडवर्ब ऑफ मैनर, बट हाउ पोलाइटली? वेरी पोलाइटली. एडवर्ब इज मॉडिफाइड बाय अनदर एडवर्ब, इसका मतलब ए भी क्या हुआ? एडवर्ब, बिकॉज एन एडवर्ब कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय एडवर्ब. तो एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है. वेरी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर. He is too tired to continue. How was he tired? अब ही कैसा था? टायर्ड था. प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव. बट हाउ टायर्ड? टू. अब एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब. सब रिपीट हो रहे हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच. एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, राइट? He ran across the field. How he ran? Where he ran? Across the field. इसका मतलब फील्ड के अक्रॉस का मतलब क्या? क्रॉस करते हुए, राइट? तो एक छोर से दूसरे छोर जाना, राइट, इसे अक्रॉस बोलेंगे. रोड पे आप किनारे किनारे चलते हो तो अलोंग द रोड बोलते हैं, राइट? किसी चीज के चारों तरफ जाना अराउंड बोलते हैं. तो यहाँ अक्रॉस द फील्ड मतलब इस पार से उस पार, तो फील्ड के अक्रॉस यानी कि प्रपोजिशन बताएगा, राइट? ही इज रनिंग. हाउ ही इज रनिंग? अक्रॉस द फील्ड. तो यहाँ पे अक्रॉस क्या है? प्रपोजिशन, राइट? प्रपोजिशन. दैट्स आवर आंसर, सी. आई हैव लिटिल पेशेंस. पेशेंस आपके पास है, कितना है? लिटिल. अब पेशेंस क्या है? नाउन. एंड नाउन इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. कितना पेशेंस है आपके पास? लिटिल पेशेंस. मच पेशेंस, राइट? कितने? फ्यू स्टूडेंट्स. लिटिल मनी, ये सब क्या है? प्रपोजिशंस. तो लिटिल इज प्रपोजिशन. शी फेल्ड. व्हाई शी फेल्ड? फॉर शी डिडंट वर्क हार्ड. अब यहां देखो फॉर किसका काम कर रहा है? देखो फॉर तो प्रपोजिशन भी है. आई बॉट दिस पेन फॉर 20 रुपीज. तो यहां पे फॉर क्या है? वैल्यू बता रहा है, ये प्रपोजिशन है. लेकिन जैसे ही आप कहते हो शी फेल्ड, व्हाई शी फेल्ड? बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड. तो बिकॉज की जगह भी फॉर काम करता है एज कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स. फॉर का मतलब होता है बिकॉज, जो रीजन बताता है. ये फिर अगर रीजन बता रहा है, बिकॉज की जगह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कनेक्टर है, ये कंजंक्शन है, राइट? आप कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स में जाते हैं तो फैन बॉयज पाते हो, फॉर एंड नॉर और, राइट? वहां पे उसी में से फॉर है. फॉर का मतलब है बिकॉज. अब इसी को चेंज कर दो तो आपको सो यूज करना पड़ेगा. शी डिडंट वर्क हार्ड, सो शी फेल्ड. अब आप इसको चेंज करोगे तो सो लगाना पड़ेगा. इसका मतलब अगर आप कॉन्सिक्वेंस पहले लाओगे, सॉरी रीजन पहले लाओगे, कॉन्सिक्वेंस बाद में लगाओगे तो सो आएगा. और यहां पे शी फेल्ड ये कॉन्सिक्वेंस है, आपको रीजन बाद में बताना है तो फॉर लगाना पड़ेगा. सो दीज वर जस्ट 25 क्वेश्चंस एंड आई होप कि आज थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया गया है या बोल्ड में लिख दिया गया है, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो यू कैन इजीली टेल, राइट? बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इफ यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑन इट, सो आई विल डेफिनेटली सेंड यू सम मोर प्रैक्टिस एंड आई विल हैव सम मोर सेशंस एज वेल. बट माय पर्पस ऑफ टुडेज सेशन वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना. बहुत बेसिक चीज है. मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके एमएस सेट इंग्लिश के लिए और बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये स्कूल लेवल की चीजें हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है एक वर्ड क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रपोजिशन है, क्या है. एंड सिंपली आई वाज टेलिंग दैट, राइट? सो होप you guys have got some useful information in this video. Keep sharing among your friends, and please, if you like the video and if you think it is going to be useful for you, so please subscribe the channel and share among your friends for more information and more such useful videos. Thank you everyone.